Assalamualaikum. Good morning to all of you. How are you, students? I hope you are doing good and enjoying the best of your health. Myself, Mr. Virya Gahar, your science teacher. Okay, student, without wasting our time, we are moving towards our today's lecture. Okay, student, now open your books. Open page number 5. Student, before moving towards the topic, today's lecture, I want to share the answer of the previous work which I have given to you. Okay, I have given you few questions which I have told you to write down on the answer in your rough copies. Then I will tell you the answer in the next lecture. So now check the answers. Number 1. Question number 1 is that explain why a spark from firework will not hurt you as much as a cup of tea. आपका जो स्पार्क है फाइववर्क में वो आपको इतना हर्ट नहीं करता जितना अ कप ऑफ टी आपको हर्ट करती है. वाई? बिकॉज वाई सोचा आप देखें, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी. योर फायरवर्क डज नॉट कंटेन much heat energy, that's why it will not hurt as much as a cup of tea can hurt. Okay, number 2, what is heat? You have to write the definition of heat here and what are the units of heat energy called. Heat is the transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object. Okay, heat क्या है? Heat is a transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object. And what are the unit of heat energy? The units of heat energy are joules and kilojoules. Number 3, what is temperature? How temperature is measured? Temperature is the measure of how hot or cold something is. And how temperature is measured? Temperature is measured in degree Celsius or degree Fahrenheit. Okay, now move towards the question number 4. Describe how the movement of its particles change as the temperature of a substance change. Describe करना है how the movement of its particles, यानी कि movement of particles कैसे change होती है temperature के साथ. Okay, the answer is the particles of substance move with respect to the amount of energy they have. Okay, energy के amount के according move करते हैं. At higher temperature the particles move about very फास्ट, यानी कि हायर टेम्परेचर पे पार्टिकल्स क्या होंगे? मूव वेरी फास्ट होंगे एज कम्पेयर टू व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो. एज टेम्परेचर फॉल्स दिस एनर्जी इज़ लॉस्ट एंड द पार्टिकल मूव मोर स्लोली. मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स की मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? The temperature at which the particle of substance stop moving is called absolute zero. Okay, absolute zero क्या है? The temperature at which the particles of substance stop moving is called absolute zero. Okay, और absolute zero का temperature क्या है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड. Okay. Okay, number 6, what is Kelvin scale? The Kelvin scale is a temperature scale with degrees the same size as the Celsius scale starting from absolute zero. Kelvin scale क्या है? Kelvin scale भी क्या है? एक टेम्परेचर स्केल है with degree same size as the Celsius scale starting from absolute zero. मतलब इसका डिग्री कहाँ सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसकी सेम साइज एज डिग्री इन द सेल्सियस स्केल बट एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है. मतलब कितने टेम्परेचर से स्टार्ट हो रही है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड से. ठीक है, these are the answer of these question. Okay, look at these questions, answer of these question which I have told you verbally. Now I am showing you the written answers. Okay students, because firework does not contain much heat energy, that is why it will not hurt you as much as a cup of tea. Second question, what is heat? Okay, what is heat and what are the units of heat energy called? Okay, heat is a transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object. It is measured in joules and kilojoules. Okay, number 3 is what is temperature? How is temperature measured? Okay, here is the answer. Temperature is measure of how hot or cold something is. It is measured in degree Celsius.
Okay, number 4. Describe how the movement of the particles changes as the temperature of the solution, as temperature of substance changes. Okay student, I have told you about the degree Fahrenheit, but it is not mentioned in your book, so I have cut it. But temperature is also measured in degree Fahrenheit. Sorry, it is your body temperature that is measured in degree Fahrenheit. Otherwise your room temperature is measured in degree Celsius. Okay, answer of question number 4 is the particles of substance move with respect to the amount of energy they have. At higher temperatures, a particle move very fast. As the temperature falls, this energy is lost and the particles move more slowly. Okay, question number 5 is, what is absolute zero? The particles at which the particle of a substance stop moving is called absolute zero. Sorry, here is temperature. Okay, the temperature at which the particles of a substance stop moving is called absolute zero. Question number 6, what is Kelvin scale? Okay, and the answer is, the Kelvin scale is a temperature scale with degrees the same size as the Celsius scale starting from absolute zero. Okay student, note down these questions answers. You have also done these questions in your copies as well. Okay, you have to do this work in your copies as well. Okay, I will let you know how the work will be done, काम कैसे किया जाएगा, but right now you have to note down these. जब मैं आपको काम का बताऊंगी तो आप वीडियो बैकवर्ड मूव करके बैकवर्ड रिवाइंड करके आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जब मैं काम का आपको बता दूंगी कि काम कैसे करना है. ओके, नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ. What happened to the movement of particles in a liquid when it is heated? जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या? ओके, व्हाट हैपन टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स? पार्टिकल्स की मूवमेंट के साथ क्या होता है व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसे हीट किया जाता है. तो इन लिक्विड्स द पार्टिकल मूव फास्टर एज द टेम्परेचर राइजेज. एज यू नो, टेम्परेचर राइज होगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट होगी. एट द सरफेस द फास्टर पार्टिकल ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव इट. तो आपके जो ऊपर वाली सरफेस होगी लिक्विड की, तो उसके पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होकर गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट नेम इज़ गिवन टू द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैस? ओके, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो स्टेट का नाम क्या होगा? एवेपोरेशन. ओके, अ गैस टू अ लिक्विड से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन. अ सॉलिड टू द लिक्विड, मेल्टिंग. अ लिक्विड टू अ सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना क्या होगा? फ्रीजिंग. देखें, लिक्विड से गैस में चेंज होना वेपोरेशन का प्रोसेस, आपका गैस से लिक्विड में चेंज होना, ठीक है, गैस से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन का प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग का प्रोसेस, एंड अ लिक्विड टू अ सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में चेंज होना फ्रीजिंग का प्रोसेस. नंबर 3, वेयर डज द हीट एनर्जी कम फ्रॉम टू मेल्ट एन आइस क्यूब विच इज़ लेफ्ट ऑन द किचन वर्क सरफेस? किचन वर्क यानी कि काम करते हुए जब आप लेफ्ट कर दें किचन में आइस क्यूब, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी आइस को मेल्ट करने के लिए? द आंसर इज फ्रॉम द एटमोसफेयर. कहाँ से आएगी? सराउंडिंग के एटमोसफेयर में जो हीट एनर्जी होगी वही आइस क्यूब को मेल्ट करने के काम आती है. ठीक है, वही आइस क्यूब को मेल्ट करती है. ओके, हियर इज़ द रिटन आंसर्स ऑफ पेज नंबर 4 विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. मैंने आपका भी आंसर्स बताए. ठीक है, ये उसके रिटन आंसर्स हैं. आपको क्या करना है, जस्ट इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपी में उतारना है. 2 and 3 आप अपने बुक में ही कर लीजिए. ओके, ये तो सब था प्रीवियस. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोना रीड द book. What you have to do, you know well, look at the screen carefully or else look at your books carefully. Heat can be transferred from one place to another in 3 ways. हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है 3 तरीक़ों से. नंबर 1, कंडक्शन. हीट कैन ट्रैवल थ्रू
सॉलिड्स, हीट सॉलिड्स से ट्रैवल कर सकती है। यू विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्टिरिंग हॉट सूप इन अ सॉस पैन विद अ मेटल स्पून। आप जानते होंगे, इफ़ यू हैव एवर ट्राइड, अगर आपने कभी हॉट सूप, गर्म सूप को सॉस पैन में गर्म करते हुए स्टिर किया है, उसमें स्पून चलाया है, ठीक है, विद अ मेटल स्पून। किससे स्टिर किया है, हिलाया है, किससे, अ मेटल स्पून से, लोहे के चमचे से। हीट मीन थर्मल एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी मीन्स थर्मल एनर्जी। फ्लो क्विकली फ्रॉम द सूप थ्रू द स्पून टू योर फिंगर। जो हीट है वो सूप से जल्दी से सूप से चमचे के ज़रिए आपके फिंगर्स तक पहुंच जाती है। विच स्पून बिगन्स टू गेट हॉट। और आपने देखा होगा, आप गर्म स्पून, जब लोहे का स्पून किसी सूप में या फिर कुकिंग करते हुए आप जब उसमें स्टिर करते हो, हिलाते हो, चलाते हो, चम्मच चलाते हो, तो वो स्पून गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसकी जो हीट है वो आपके फूड से आपके फिंगर्स तक पहुंचना शुरू कर देती है। द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एस मेटल। मूवमेंट ऑफ हीट की मूवमेंट थ्रू अ सॉलिड से, जैसा कि सॉलिड की, मेटल क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ठोस चीज़ों से, सॉलिड कहते हैं ठोस चीज़ों से, सच एस मेटल जैसे कि मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन कहलाती है। द मेटल स्पून कंडक्ट हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड। मेटल का स्पून क्या करता है, कंडक्ट करता है हीट को फ्रॉम हॉट सूप टू योर हैंड, हॉट सूप से आपके हाथ की तरफ, ठीक है। मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल हीट के बेस्ट कंडक्टर है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो हीट को पास होने में मदद देता है या पास अलाउ करता है, यानी कि हीट की पासिंग अलाउ करता है आप, ठीक है। लाइक आपका कोई भी मेटल रॉड हो गया, कॉपर वायर हो गई, वो क्या है, सारे कंडक्टर्स हैं। मेटल आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल बेस्ट कंडक्टर है हीट के, बिकॉज हीट कैन ट्रैवल थ्रू दैम ईजीली, क्योंकि हीट इनके ट्रैवल कर सकती है, आसानी से इनमें से गुजर सकती है। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने पकाने के बर्तन, आर मेड ऑफ मेटल, उन्हें भी लोहे के मेटल के बनाया जाए, सो दैट द हीट फ्रॉम द कुकर कैन गेट टू द फूड क्विकली। क्यों मेटल के बनाए जाते हैं, ताकि कुकर से हीट इजीली फूड तक पहुंच सके और फूड कुक हो सके। नॉन मेटल सॉलिड जो मेटल्स नहीं होते हैं, सच एज ग्लास, जैसे ग्लास एंड प्लास्टिक, और प्लास्टिक टेंड टू बी पुअर कंडक्टर्स है, यानी कि प्लास्टिक एंड ग्लास में से हीट पास नहीं हो सकती आसानी से, एंड होती ही नहीं है पास, प्लास्टिक से एंड ग्लास से बहुत कम हीट पास होती है, ठीक है। एंड सो डू मोस्ट लिक्विड, और इसी तरह ज़्यादा लिक्विड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो हीट को पास नहीं होने देते या फिर कम पास होने देते हैं, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर बहुत अच्छा इंसुलेटर है। मटेरियल सच एज फर, फीदर्स, वूल, प्लास्टिक, फोम एंड ग्लास और mineral wool are good insulator because they contain pockets of trapped air। आपकी जो मटेरियल है, जैसे कि फर हो गया, फीदर्स हो गए, वूल हो गई, प्लास्टिक फोम हो गया, आपके ग्लास हो गया, और मिनरल वूल आर गुड इंसुलेटर, क्यों ये अच्छे इंसुलेटर हैं, बिकॉज क्योंकि दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। इनके अंदर पॉकेट्स बनी होती हैं छोटी छोटी, जो एयर को ट्रैप कर लेती हैं। हियर लुक एट द डायग्राम। हीट कंडक्ट फ्रॉम वार्म टू कोल्ड। ये देखिए यहाँ पर हीट को दी जा रही है, ये मेटल बार है, यहाँ पर हीट दी जा रही है लाइक अ मेटल रॉड। आप मेटल रॉड को अगर ओवन पे रखेंगे, उसकी एक साइड और दूसरी साइड से अगर पकड़ेंगे तो ग्रेजुअली हीट आपके हैंड तक, अगर यहाँ से आप पकड़ें तो ग्रेजुअली आपके हैंड तक पहुँच जाएगी। क्या होगा, हीट फ्रॉम कंडक्ट फ्रॉम वार्म टू कोल्ड की तरफ मूव कर रही है। मॉलिक्यूल इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, दे वाइब्रेट और जिगल, वो वाइब्रेट या जिगल करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले उसमें डायग्राम, वो कुछ फ्यू एनिमेटेड वीडियोस भी दिखाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड में वो वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। नाउ कम टू कंडक्शन एंड द काइनेटिक थ्योरी। कंडक्शन एंड काइनेटिक थ्योरी। Okay, here is a description as well of this diagram. Particles vibrate more quickly when heated. Particles quickly vibrate करते हैं जब हीट उन्हें मिलती है। Some of this energy is passed on to the neighboring molecule, और कुछ एनर्जी दूसरे साथ वाले मॉलिक्यूल में पास हो जाती है। When passes it on to their neighbors and so on। इसी तरह एक यहाँ से स्टार्ट होगी, ये फास्ट वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी इसमें पास होगी, इसमें पास होगी, ग्रेजुअली मूव करती दूसरे एंड तक पहुँच जाएगी, ठीक है।
Now come to the conduction and the kinetic theory. Conduction and kinetic theory. If one end of a metal bar is heated, अगर एक एंड मेटल बार का हीट किया जाए, द पार्टिकल गेन थर्मल एनर्जी, पार्टिकल्स क्या गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी, एंड वाइब्रेट फास्टर, और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे. दिस कॉजेज द पार्टिकल नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल. वो क्या करेगा, पार्टिकल दूसरे उसके अपने बराबर में जो नेबर में पार्टिकल्स होगा, नेक्स्ट उसके आगे जो पार्टिकल होगा उसको भी वाइब्रेट करेगा, और उसके नतीजे में क्या होगा, साथ वाला पार्टिकल भी फास्टर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा. बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता, द इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पास अलॉन्ग द बार, यानी कि ग्रेजुअली वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से मूव करती करती पूरे बार में मूव चली जाएगी. अनटिल द होल बार इज हॉट, यहाँ तक कि पूरी बार क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. हीट हैज़ बीन कंडक्टेड अलॉन्ग द बार, और हीट कंडक्ट हो जाएगी, मतलब पूरे बार में हीट कंडक्ट हो जाएगी. दिस वाज द डायग्राम विच आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर. ओके, यहाँ से हीट मिलना स्टार्ट हुई, आपका पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, फास्ट वाइब्रेट हुआ, इसने इसको वाइब्रेट करना शुरू किया, और ग्रेजुअली 1 बाय 1 करके पूरी बार में हीट ट्रांसफ़र हो गई. ओके, हियर इज़ द क्वेश्चंस. विच मटीरियल्स मेक द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कौन से मटीरियल जो हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या है, नेम 3 इंसुलेटर, 3 इंसुलेटर्स के नाम बताएं. एक्सप्लेन हाउ हीट इज़ कंडक्टेड अलॉन्ग अ मेटल बार, एक मेटल बार में हीट कैसे कंडक्ट होती है. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट द बेस ऑफ सॉसपैन इज़ मेड ऑफ मेटल, बेस ऑफ सॉसपैन मेटल की क्यों बनती है. नंबर बी, द हैंडल ऑफ अ सॉसपैन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, हैंडल सॉसपैन का जो हैंडल है प्लास्टिक का क्यों बनता है. नंबर सी, पोलर बियर हैव अ थिक कोट ऑफ फर, पोलर बियर की कोट की फर थिक क्यों होती है. और नंबर डी, बर्ड्स फ्लफ आउट देयर फीदर्स इन विंटर, और विंटर में बर्ड्स जो हैं अपने फीदर्स को फुला लेते हैं. फ्लफ आउट यानी कि फुलाना, क्यों फुला लेते हैं. ठीक है. यू हैव टू राइट द रीज़न ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, आपने इन स्टेटमेंट के रीज़न लिखने हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है. ओके, आप लोग खुद इसके रीज़न फाइंड आउट करें. नेक्स्ट, जैसे आज हमने पहले डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगेन पहले आंसर्स डिस्कस करूँगी, देन वी विल गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर कॉपीज. आई होप सो दैट यू हैव बॉट दिस कॉपी. इट इज़ योर स्कूल कॉपी. आप पहले भी कॉपी यूज़ कर चुके हैं. ठीक है, आपको पता होगा. आई हैव एन ओल्ड वन, मेरे पास पुरानी कॉपी है, बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेंटेन द कॉपी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर इंडेक्स. इस तरह इंडेक्स होगा. ठीक है, आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 मेंशन करना है, चैप्टर का नेम लिखना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन आंसर करवाए हैं आज, मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो जो आपने कॉपी में उतारने हैं. तो आपने इस तरह क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डाल के आज की डेट डाल देनी है. और उसके बाद मैंने अगर ट्रू फॉल्स करवाया है, फिलिंग द ब्लैंक्स करवाऊंगी, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके साथ उसकी डेट मेंशन कर देंगे, जिस डेट को मैंने ट्रू फॉल्स करवाए होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करवाई होंगी, MCQs करवाए होंगे. ठीक है, जो जो टॉपिक करवाती जाऊँगी वो आपने मेंशन करते जाना है. ठीक है. हियर यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर. सारे क्वेश्चन आंसर इसी में हो जाएंगे. ठीक है. दीज आर क्वेश्चंस. ओके, बाय मिस्टेक है. दीज आर क्वेश्चंस. ओके, questions answer, you have to put the date of the question answer, okay, on which it is started. Got it? Now open the copy. Okay, you have to put the heading of first term on the white page. Okay, you are allowed to use only blue and black marker. Blue and black marker allow है, and blue and black पेन से ही आपने काम करना है. Okay, now look at the page. You have to put the heading of chapter number on the top of the page. Okay, chapter number 1, heating and cooling. Here you have to put the question answers heading, and question number 1 की heading इस तरह डाल के question number 1 लिखना, then answer, and you have to put the date and day on every page. Okay, हर पेज पे आपने डेट और डे डालनी है. Okay, जहाँ आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 2 लाइन्स छोड़कर या 1 लाइन छोड़कर आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है. ठीक है, 1 या 2 लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 की इसी तरह हेडिंग डालेंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, योर वर्क मस्ट बी नीट एंड क्लीन. और जो मैंने आप लोगों को आज वर्क करवाया है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताएं टेस्ट योर सेल्फ, वो आपने अपनी कॉपी में उतारने हैं. ओके स्टूडेंट्स, मेक श्योर देयर मस्ट बी नो स्पेलिंग एरर. ओके,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्पेलिंग एरर में, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कैन गूगल इट, यू कैन गूगल द स्पेलिंग। आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो, आप जस्ट अपने गूगल पर पुट करें, स्पेल आ जाएंगे। ओके, और यू कैन ईदर टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लें। देयर मस्ट बी नो मिस्टेक इन योर कॉपी वर्क। ओके, कॉपी मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड मेक श्योर कि आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ओके स्टूडेंट्स, I am showing the work again, but you have to note down in your copy. Okay, carefully watch the work. Okay, you have to copy down in your copy. Okay, these are the answer. pause कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है, और ये वाले आंसर्स नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, this is all about today's topic. I hope that you will complete all the tasks which I have given to you. आपको जो मैं टास्क देती जा रही हूँ, आप साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे, अपना कॉपी वर्क मेंटेन करेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द वीक जब आप मेरे पास कॉपीज आएँ तो इट इज़ वेल मेंटेन। ओके, होप सो यू आर नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम। कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही होगी। इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट। ओके, we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care yourself. Fi aman Allah.